Good afternoon, friends, one and all present here. It's great indeed to see you all bright and energetic, even after lunch. And why do you think it's possible? Because we had Sattvic Ahar. And that's why I believe Sattvic diet is must for yoga sadhana. I, Preeti Jadhav, along with Muninder ji, Mridula ji, and Manisha ji, student of Yagnavalka Group, participant of debate titled Sattvic Diet is Must for Yoga Sadhana, are here to present our views. As Ayurvedic proverb says, when diet is wrong, medicine is of no use, and when diet is correct, medicine is of no need. Recently, actor Siddharth Suryavanshi, 46 years old, died of heart attack after just a gym session. Earlier, comic artist Raju Srivastav collapsed during workout. On the other hand, we have Padma Shri Swami Sivanand, who says, I'm still young. It's all because of Yog Sadhana and Sattvic Ahar. Another astonishing fact found out by doctors who performed autopsy on Mahatma Gandhi ji. They found out that his body was 25 years younger than his peers. All these examples explain the importance of Sattvic Ahar, not just for Yog Sadhak, but for general public as well. So let's get into detail of Sattvic Ahar. Isn't it enough just to practice yoga abhyas? Do I really have to regulate my food intake? Wonder many. In itself, practicing yoga asanas is actually a beneficial regime. But when complemented with healthy food habit, it can create wonders. In fact, practicing healthy food habits is important part of yoga sadhana. What we eat not only influence our physical well-being, but also our emotions and thoughts. Yoga does not divide food into carbohydrate, protein, or fats. Rather, it classifies them into sattva, rajasa, and tamasa as the effect they have on our body and mind. Tamasic food is a food which makes us lethargic, sluggish, or which dulls the mind. Overly oily food or spicy food or stale, reheated food are considered sattvic. For example, non-vegetarian diet or overly spicy food, oily food, sugary food. Rajasic food is a kind of food which brings out activity or restlessness. Even after, if you have excess of Rajasic food, then you might experience anger, irritability, sleeplessness, hyperactivity. Rajasic food are overly tasty food. For example, spicy food, onion, garlic, tea, coffee, etc. Whereas sattvic food is a kind of food which keeps you light, energetic, and enthusiastic. And it keeps our mind and body calm and composed. Even cooked food, which is consumed within 3 to 4 hours, can be considered sattvic. For example, fresh fruit, green leafy vegetables, and fruit, nuts, grains, or certain spices are considered sattvic. Another benefit of sattvic diet is it balances our tridosh. Tridosh which are found in our body in the form of vata, pitta, and kapha. How? Like if you have a sattvic diet, if you choose a quality ingredient in a right amount, in a right combination, apart from that, even if you practice Shuddhi Kriyas on regular basis, you can control or you can balance these three dosh. Okay, fasting is another type of diet. Fasting cleans our body inside out. Fasting for 1 week eliminates kapha, fasting for 2 weeks eliminates pitta, fasting for 3 weeks, vata, and other elements also. So it's worthwhile to pay attention to the food that we eat. As ancient Indian literature says, we are what we eat. So since we have seen how sattvic diet helps, it's play a key role in bringing out best of Yog Sadhak. So it's pointless to deny the fact that sattvic diet is must for Yog Sadhak. Thank you. And now I request other team members to come on stage. हेलो नमस्कार, मैं प्रणव जेठ
और आज का टॉपिक है सात्विक डाइट इज मस्ट फॉर योग साधक, और मैं इसके अगेंस्ट हूँ। आई फील दैट सात्विक डाइट इज वेरी गुड, करना चाहिए, अच्छी बात है, कीजिए। आवाज आ रही है अभी? सात्विक डाइट कौन मना कर रहा है आपको? कीजिए, खाइए सात्विक, लेकिन सात्विक डाइट इज मस्ट, ये आज के जमाने में संभव नहीं है। मैं एक गाने से शुरू करूंगा, इन्होंने बहुत खूब बोला, मैं भी थोड़ा सा गाना गाऊंगा। जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, वो नहीं मिला मुझे फिर कभी। मुझे मुझे जिसके सात्विक होने पर हो यकीन, वो खाना है कहाँ। आज के जमाने में आज के जमाने में, आज के कलयुग में सात्विक खाना अवेलेबल ही नहीं है, तो आप किस भ्रम में जी रहे हैं? खुद भ्रम में जी रहे हैं और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। सात्विक खाना, सात्विक खाना, सात्विक खाना। क्या आप सबके पास खुद की खेती बाड़ी है? हाँ या ना? ना, मेरी भी नहीं है। क्या आपके सबके पास खुद की पाली हुई गाय भैंस है? मेरी भी नहीं है। मैं दूध खरीद के लेके आता हूँ, जो प्रोसेस, जो पैस्चराइज होता है, वो सात्विक कहाँ? जो फल और सब्जी मैं खरीद के लेके आता हूँ, वो उसमें फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सबका इस्तेमाल होता है, तो वो सात्विक कैसे? अभी इसके अलावा तो आप चिकन मटन तो खा नहीं सकते, तो चिकन मटन वैसे भी राजसिक है। ये 21वीं सदी है, हमें खुद का एक मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हमें खुद की नौकरी है। आप बोल रहे हैं कि 3 घंटे से पहले खाना सात्विक होता है, उसके बाद तमस होना शुरू होता है, am I right? हम फिर काम छोड़ दें, पूरा दिन किचन में ही रहे? काम कौन करेगा, आपका चाचा? हम काम करेंगे तो ही पैसा आएगा, तो ही सात्विक खाना आएगा, अगर सात्विक अवेलेबल है तो, जो कि बिल्कुल नहीं। मेरे पास अभी एक हुक्म का इक्का है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही हिल्सा मछली खाते थे, बंगाली थे। वो जब शिकागो गए तब भी हिल्सा मछली खाते थे, वहां पे हिल्सा मछली अवेलेबल है। वो तो महायोगी है, उनके साधना में कभी बाधा नहीं आई, पूरे दुनिया को राजयोग सिखा के चले गए। उनको बुलाइए, वो आपको मना कर देंगे। महाराष्ट्र लोग खाना खाने से पहले एक प्रार्थना करते हैं। वदन कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता पुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न है पूर्ण ब्रह्म, अन्न है पूर्ण ब्रह्म, अन्न है पूर्ण ब्रह्म, अन्न ये पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। ये सिखाने के लिए शेगांव के श्री गजानन महाराज ने फेंके हुए चावल तक खाए। फेंके हुए चावल जो कि तामसिक है, 3 घंटे क्या 124 घंटे के बाद हो गए। फिर भी वो ब्रह्म स्वरूप थे, ये सिखाने के लिए उन्होंने ये खाया। हमें सिखाया जाता है अक्सर कि प्लेट में जो आए चुपचाप पूरा खाना चाहिए, अन्नपूर्णा देवी का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर माँ ने या बीवी ने प्यार से कुछ खाना बनाया है सुबह, और पूरा दिन हो गया फिर भी थोड़ा सा खाना बचा है, शाम को तो खाएंगे ना, क्या उसके भी फेंक देंगे? अन्नपूर्णा देवी का अपमान करेंगे आप? तो योग साधना कैसे हुई? मुझे लगता है कि हमें सपनों की दुनिया में रहना नहीं चाहिए। ये आज की दुनिया है, कलयुग है, हमें पूर्ण वास्तविकता में रहना चाहिए। और जो दूध आता है, वो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे गाय है, दूध निकाला और मृदुला जी आपने पी लिया। दूध भी बहुत दिन के बाद एक्सपायरी डेट के साथ आता है। हमें वास्तव को एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमें आंख बंद करके दूध पीना नहीं चाहिए। आप तो ऐसे बोल रहे जैसी 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हज ऐसा नहीं मिलने वाला आपको। आपको वास्तव में रह के योग साधना करनी चाहिए। आपकी सेहत का ख्याल आपका योग साधना रखेगा ना? हाँ, अगर आप बोलेंगे कि सात्विक डाइट इज मस्ट, इससे क्या होता है, इससे मन में क्लेश उत्पन्न होता है, रजस को लेके, तमस को लेके। अगर मैं आपसे तमस और रजस ले लूं, तो आप योग साधना कैसे करोगे? रजस अगर ले लूं तो काम को कौन जाएगा, तमस ले लूं तो सोएगा कौन? कृष्णा ने भगवत गीता में 17वां अध्याय 3रा श्लोक, यहाँ से सात्विक, तामसिक और रजसिक ये खाने के बारे में चर्चा की है अर्जुन से। हे पार्थ,
सात्विक खाना ऐसा ऐसा होता है, राजसिक ऐसा ऐसा, तामसिक ऐसा ऐसा। धन्यवाद। Hello friends, my name is Mridula Bhujbal, roll number Y9. I'm gonna skip my introduction because I want to answer his question. Pranav, you had lots of complaints, सात्विक diet ये या सात्विक diet वो, मुझे सिर्फ एक ही छोटी चीज बोलनी है तुझे, ऐसा ना हो, बट अगर जब तू बीमार पड़ता है तो तू डॉक्टर तुझे बहुत सारी चीजें प्रिस्क्राइब करता है, ये खाओ वो खाओ, तब तू डॉक्टर को बोलता है कि नहीं डॉक्टर ये तो फ्रेश गाय का दूध नहीं है, मैं नहीं पिएगा, तो जो पैक्ड दूध है वो पिएगा, बिकॉज यू नो मिल्क मैटर्स टू यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो माय पॉइंट हियर टू से इज कि प्रिस्क्रिप्शन में जब चीजें लिख के आती है हमको सब चलता है, तभी हम ये नहीं सोचते कि अरे सात्विक है ये है नहीं है वो है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यस डेफिनेटली सात्विक फूड मैटर्स एंड हाउ इट मैटर्स. आई अगेन गो अहेड विद फ्यू थिंग्स. पहले थोड़े स्टैट्स के बारे में बोलते हैं. देयर इज एन एडिटर्स चॉइस करके एक पब्लिकेशंस है जहां पे ऐसा बोलते हैं कि वेजिटेरियंस आर लेस लाइकली टू हैव हार्ट डिजीजेस, लेस लाइकली टू हैव कैंसर. इतना ही नहीं, टाइप 2 जो डायबिटीज का टाइप 2 होता है वो भी वेजिटेरियंस को होने के बहुत कम चांसेस है. So let us try to understand कि why all these facts, because food and medical illness are related to each other. Point number 1. Point number 2, हम each one of us कभी भी हम जब भी बीमार पड़े हो या बेसिक स्टमक अपसेट, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है क्या, लाइट खाना खाओ जैसे कि दाल खिचड़ी. किसी का है कोई डॉक्टर जिसने बोला है बर्गर पिज्जा खाओ फ्रेश लगोगे ठीक लगोगे? नहीं. हम किसी पेशेंट्स को मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में हो या फिर घर पे हो, कौन अपने पेशेंट्स के लिए समोसा कचौरी लेके जाता है? कोई नहीं. हम क्यों जाते हैं? हम जाते हैं लेके कोकोनट वाटर या फिर फ्रूट्स लेके जाते हैं, विच इज अगेन इजी टू डाइजेस्ट, बिकॉज वी आर वेल विशर्स. वी वांट कि वो जल्दी से रिकवर होए, ना कि वो वापस हॉस्पिटल के बेड पे जाके बैठे. That is what our intention is. So that means to say कि हम सब फॉलो करते हैं सात्विक डाइट. इज दैट बेसिक फर्स्ट एड. अपने पेट के लिए सबसे फर्स्ट एड इज सात्विक डाइट. और 80% ऑफ द डिजीजेस स्टार्ट फ्रॉम द स्टमक. इसीलिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें सात्विक आहार तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है. फिर बात होती है कि नॉन सात्विक चीजें से, जैसे कि अनेमिया, डेफिशिएंसी ऑफ B12 बोल के हम नॉन सात्विक खाना चालू करते हैं खाना. किसने बोला प्लांट बेस्ड फूड में नॉन सात्विक, आई मीन प्लांट बेस्ड फूड में यू डोंट गेट विटामिन B12. यू टेक एनी ऑफ द फूड, टेक प्लांट बेस्ड, जैसे कि मशरूम्स लो, स्पिनच लो, आलमंड्स, ब्लैक रेजिन्स, हर चीज में यू विल गेट B12. अपने बॉडी को ना सिर्फ 2.4 माइक्रोग्राम्स B12 की जरूरत होती है, जो अपने को सात्विक डाइट से मिल जाती है. इसलिए नॉन सात्विक डाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. एंड दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से कि B12 का कंटेंट जब अपने को ये सब चीजें से मिलता है तो अपने आप बॉडी इज बैलेंस्ड. वी कैन बैलेंस अ बॉडी. ये जो ऑर्गन फंक्शनिंग है अपने बॉडी में, that is balanced because we are getting the right content of nutrients from sattvic food. फिर ये एक्स्ट्रा चीजें क्यों खानी है, क्यों एक्स्ट्रा चीजें स्टॉक करके रखनी है? ये क्या वेयर हाउस है जिसको हम लोग ने रेंट पे लेके रखा है और उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा रख देंगे? नहीं, ये हमारा एक छोटा स्मॉल रिटेल शॉप है. रेगुलर डिमांड एंड सप्लाई होता है एनर्जीज का और ये हमें ऑर्गन्स मेंटेन करने में हेल्प करता है. इसीलिए एक्सेस खाना खा के, नॉन सात्विक खाना खा के अपने ऑर्गन्स पे प्रेशराइज मत करो. चलो अभी ये सब पॉइंट्स को हम योग साधक के साथ रिलेट करते हैं. हम बोलते हैं कि योग साधक को सात्विक खाना खाना चाहिए, अच्छा होता है ये वो. व्हाट इफ योर योग साधक या आपका योग टीचर बार बार बीमार पड़े, आपको बार बार ऐसे आसन जाते जाते ही थक जाए, आसन से आते आते ही थक जाए, क्या आप सीखोगे ऐसे योग साधक से? कभी नहीं, क्योंकि आपके माइंड में उसका एक इमेज है, यार ये योग साधक है, बहुत अच्छे से पोस्चर्स मेंटेन करता है, बहुत अच्छे से ही गोज इनटू द पोस्चर, ही कम्स आउट आफ्टर दिस प्रैक्टिसेस. तो इज ही परफेक्ट? No, it's not about perfection. It's about awareness. योग साधक is aware about his body. He has knowledge of his body. उसके body को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए. And with all the little food habits that he has, with all kind of the small sattvic things that he does, he transforms his body. और वो ऐसे transform करता है अपनी habits की वजह से कि हम automatically उससे influence होना चालू हो जाते हैं. एंड अगेन लास्टली वापस मैं यही कहना चाहूंगी कि सात्विक आहार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. योग साधक को तो है ही, बट हम सभी को सात्विक डाइट का आहार करना ही चाहिए. थैंक यू.
हेलो, स्टार्ट। तो दोस्तों, मेरा नाम वसुधा अग्रवाल है, G16 रोल नंबर। और आज का हमारा जो डिबेट का टॉपिक है, फिर से याद दिला देती हूँ। इस सात्विक डाइट इज मस्ट फॉर योग साधक, और मैं उसके अगेंस्ट में हूँ। अभी बहुत डिबेट फीवर चल रहा है ना, कुछ लोगों ने पक्ष में बोला, प्रणव ने विपक्ष में बोला, तो ऑडियंस भी बट गई होगी। कुछ लोग पक्ष से प्रभावित होंगे, कुछ विपक्ष से। मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं था। मैं डिबेट में नहीं, एक सात्विक मूवमेंट के सेमिनार में चली गई थी 2 घंटे के, और इतना जोश चढ़ गया मुझे कि मैंने निर्णय लिया था कि आज से मैं पूर्णतः सात्विक भोजन करूंगी। अगले दिन सुबह सुबह किचन में गई और देखा फ्रिज, जो ये घोर तमस का कारण हम सबके घरों में ये मौजूद है। मैंने सोचा इसे आज ही OLX पे बेच दूंगी। आप लोगों ने बेच दिया है? तो और मैं चल पड़ी बाजार की ओर, शुद्ध मधुर ताजी और पौष्टिक फल सब्जियां खरीदने। कहीं भी ढूंढा, बहुत ढूंढा बाजार में, कहीं भी शुद्ध ताजी फल सब्जियां मिली नहीं। केला कहीं तो आधा कच्चा था, कहीं ज्यादा पका हुआ। साफ देख के लग रहा था कि कार्बाइड से पका हुआ है। सेब तो वैक्स की मोटी लेयर से सजा हुआ था। खैर, प्याज लहसुन की तरफ तो मैंने आंख उठाकर भी नहीं देखा। घोर तामसिक, घोर तामसिक। फिर मैंने सोचा चलो दूधी लेते हैं। तो दूधी प्लास्टिक के रैपर में थी। मैंने पूछा, भैया ये प्लास्टिक में क्यों देते हो? बोला, ये स्टोरेज में दब जाती है ना, इसलिए। मैंने कहा, स्टोरेज ताजी नहीं है? बोला, मैडम क्यों मजाक कर रहे हो? हमारा कौन खेत है कि ताजी दूधी आपको लाके देंगे? जाओ तो फिर गाँव में जाके बसो, वहीं पे मिलेगा ताजा। मैंने कहा, अच्छा। बड़ी परेशान, सोचा चलो गव्यम, गाय के दूध का सेवन करते हैं। तो एक ग्वाले से दूध बांधा था। उसके दूध में तो दूध कम, पानी ज्यादा होता था, और पैकेट का दूध तो प्रणव ने बताया ही, पता नहीं कब कब निकला हुआ होता है। सोचा चलो डेयरी से लेते हैं दूध। तो एक डेयरी पे गई, मैंने बोला, भैया गाय का शुद्ध दूध चाहिए, आपकी गौशाला कहाँ है, जरा मुझे देखनी है। बोला, हमारी कोई गौशाला नहीं है, बहुत सारे दूध वालों से कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो आपके दे जाते हैं। वहां पे एक बड़ा सा गोल सा उपकरण था। मैंने पूछा, ये क्या है? बोले, होमोजेनाइजर है। इसमें क्या होता है? इसमें सारा दूध मिक्स कर दिया जाता है, और जो गाय का दूध हम गाय का दूध समझ के खरीदते हैं ना, वो दरअसल गाय का नहीं होता है। वो फैट परसेंटेज के हिसाब से उसमें उतनी मलाई वापस डाल के फिर से होमोजेनाइज करके हमें बेच दिया जाता है। सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। वापस थक हार के घर को आ गई। सुबह से निकली थी, ना तो योग साधना हुई थी, ना तो पेट साधना। चित्त वृत्ति निरोध के पद पर मैं गई थी, और यहाँ तो चित्त बिल्कुल खिन्न हो गया था। तभी मेरे मित्र ने सुझाव दिया कि एक नई ऐप आई है, वो फार्म फ्रेश सब्जियां आपके घर पर डिलीवर करेंगे, और देसी गिर गाय का A2 मिल्क भी देंगे। मैं बड़ी खुश, तुरंत से वो ऐप डाउनलोड करी और देखा 80 रुपए लीटर दूध, 120 रुपए किलो टमाटर। सोचा ये सात्विक डाइट तो मेरे बजट के ही बाहर है। बड़ा मन खिन, क्या करूं, आहार छोड़ दूं कि विहार छोड़ दूं? तो मन को ध्यान लगाया मैंने, और सोचा चलो एक बार फिर से अपने योग ग्रंथों की तरफ देखते हैं। हर प्रदीपिका में देखा, लिखा है बाधक तत्व। आज रेखा जी ने भी बताया, बाधक तत्व में लिखा गया है, अत्याहार योगो विनश्यति, अत्याहार से योग का नाश होता है। घेरान संहिता में भी लिखा गया है, मिताहारम अन्येन पूर्यर्दम, मतलब योग साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए संतुलित आहार, मिताहार लेना चाहिए, आधा पेट भोजन करना चाहिए। भगवत गीता के भी 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है, न अति अश्नतस्तु योगो अस्ति, नाचा एकांतम अनशनतः, मतलब ना तो अन्न की अति से और ना ही अन्न की कमी से योग साधना सिद्ध होती है। भगवत गीता में यह भी लिखा गया है, युक्ताहारस्य योगो भवति, यथा योग्य आहार करने से योग साधना सफल होती है। जहां कहीं भी सात्विक डाइट के बारे में लिखा था, वहां लिखा था सात्विक प्रिया योग्यम योगी भोजनम आचरित। सात्विक भोजन योगी को प्रिय होता है, उसके आचरण में होता है, अनिवार्य होता है, मस्त होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा था। तो मृदल ने बोला कि योग साधना वो हो जाएगा, थक जाएगा। तो ओशो ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि योग साधना करना पहाड़ पे चढ़ने समान है, जितना हम हल्का रखेंगे उतना आसानी से चढ़ पाएंगे। तो सात्विक भोजन हल्का रखता है, परंतु वही काम हम मिताहार अल्पाहार करके भी कर सकते हैं। तो दिखावों पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, वास्तविकता के धरातल पर उतर कर देखो। सात्विक भोजन ना तो अनिवार्य है, ना ही संभव, इसलिए सात्विक भाव रखते हुए शांत चित्त से संतुलित आहार लेते हुए अपनी योग साधना करिए, सफलता जरूर मिलेगी। अगर सात्विक डाइट की अनिवार्यता रखेंगे तो योग विद्या, हम में से आधे लोग इस हॉल में मौजूद ही नहीं रहेंगे, और गुरु जी का जो दर्शन है योग विद्या घरों घरी, वो तो अधूरा ही रह जाएगा। धन्यवाद। Can I start, sir?
Okay. Myself, Munendra Singh. My roll number is Y10, and I will be speaking for the motion. That is, सात्विक diet is must for a योग साधक. सबसे पहले तो बहुत अच्छे से आपने माँ अन्नपूर्णा का आपने वर्णन किया, वहीं से स्टार्ट कर. आपने शायद ध्यान नहीं दिया, माँ अन्नपूर्णा का यहाँ श्लोक लिखा हुआ है और वो आहार के ऊपर है और केले के पत्ते पर है. सात्विक डाइट को रिप्रेजेंट करता है. योग यहाँ लिखा हुआ है, योग यहाँ है और यहाँ सात्विक आहार रिप्रेजेंट करता हुआ केले के पत्ते पर अन्नपूर्ण माँ का श्लोक लिखा हुआ है. बट आपने तो पढ़ा ही नहीं, आप तो जस्ट कॉमेडी करने आए हो ना यहाँ पे. चलो ठीक है, चलता है. ठीक है. योग 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 डाइट, योग साधक एंड सात्विक आहार are two sides of a same coin. They cannot be separated from each other or cannot be viewed in isolation. ठीक है. अब नेक्स्ट आते हैं. जो सही साधक कौन होता है? ना ही वेश धारणम सिद्धे ना ही कारणम च तत्कथा क्रियेव कारणम सिद्धे. ये जो है ना, ये सिर्फ वेश धारण करके और सिर्फ बातें करने आए हैं यहाँ पे. इन्होंने क्रिया नहीं की है, इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ बातें कर रहे हैं और वेश धारण कर रहे हैं. चलो नेक्स्ट आते हैं. अभी सेमिनार खत्म हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ यम नियम फॉर ए योग साधक. यम नियम आपने अगर पढ़ा होता अच्छे से, एग्जाम देके शायद भूल गए होंगे. यम नियम में आता है अस्ते. अस्ते मतलब जितना जरूरी है उतना ही चाहिए. मैडम उसके लिए फ्रिज नहीं लगेगी. जितना जरूरी है ना, सावंत सर के घर में फ्रिज नहीं है. ठीक है. ये अस्ते योग प्रिंसिपल को जीवन में अगर नहीं उतारोगे तो कॉमेडी ही करोगे. ठीक है. तो अस्ते होना चाहिए. फिर आते हैं ब्रह्मचर्य पर. ब्रह्मचर्य is not merely abstaining from sex, it has got broader meaning. The input which we are taking from our panch indriya is also an ahar, and we should follow those सात्विकता in that act also. तो हमें सब, और जब हम ये फॉलो करते हैं तब हट प्रदीपिका श्लोक नंबर 1.59 नोट कर लो, लिख ले, बाद में देख भी लेना. उसमें लिखा है ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योगी योग परायण का. मतलब जो ब्रह्मचर्य, जो ट्रू सेंस में ब्रह्मचर्य को फॉलो करता है, और मिताहारी है, त्यागी है, that attained success in योग without any doubt within 1 year. और जो उसको फॉलो नहीं करता है, वो घृण्य संहिता में लिखा गया है कि जो आप फॉलो नहीं करते, मिताहार का जो पालन नहीं करते हैं, उनको योग में नाम मात्र की भी सिद्धि नहीं मिलती है. तो क्या आप ऐसे योग साधक बनेंगे जिनको नाम मात्र की भी सिद्धि नहीं चाहिए? शायद आप ऐसा बनना चाहें क्योंकि आप तो वेश धारण करके आए हैं. ठीक है. तो सात्विक डाइट में ब्रह्मचर्य इन ट्रू सेंस एंड मिताहार इज आल्सो ए सबसेट ऑफ सात्विक डाइट ओनली. सात्विक डाइट का सबसेट. मैथ तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने. चलो ये हो गया योगिक पर्सपेक्टिव. अब साइंस के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं. 2016 का नोबेल प्राइज इज गिवन टू ए जापानीज साइंटिस्ट होशुमी फॉर ए concept of autophagy. The autophagy says our body cell regenerate, repair themselves under the influence of fasting and mita ahar too. So from there only the concept of intermittent fasting and the concept of turning into vegan is getting popularity in world. So this is the science perspective, and there are many literature. Even YVN has got 2 publications, Nisarg Ahar and Nisarg Jivan by Guruji and Savant Sen, highlighting the importance of sattvic diet and recommending the same. But इन्हें तो वो मानना ही नहीं, इनको मस्ट से प्रॉब्लम हो गई. अरे ये कॉम्बिनेशन मस्ट कैसे हो सकता है? अरे भाइयों, ये मस्ट नहीं, ये मस्त कॉम्बिनेशन है. बहुत ही मस्त कॉम्बिनेशन है ये. और चलो जानते हैं ये मस्त क्यों है. इनको मस्त से प्रॉब्लम. और ये मस्त कैसे बोल दिया? मस्त ऐसे है, आप चलो अपने अनुभवों के आधार पे देखते हैं. When it is said a day before Kriya, what it is said, you have to eat pure, light, easily digestible food. Easily digestible food is sattvic ahar only. And when we follow that, and next day when we perform Kriya, फिर दंड क्या और वस्त्र क्या, सब कुछ कितने अच्छे से हो पाता है हमसे, है कि नहीं? और उसके बाद जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, we take fruit as a breakfast, and that is also a sattvic diet. And after following that, we feel light, we feel positive vibe, and those positive vibe, ये अपने अनुभव है. ये those positive vibe, is it because of kriya only? No, it is the beautiful magical combination of sattvic ahar and yoga abhyas. So these two are complementary to each other. They cannot be separated. Comedy करने से नहीं होता है यहाँ पे. So they cannot be separated from each other.
दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, इसीलिए छंदोपनिषद में लिखा गया है. थैंक यू वेरी मच. मच फॉर योग साधक. हॅलो, सर्वांना सर्वप्रथम नमस्कार. मी करिश्मा अप्पाजी कदम G5. आजचा विषय सात्विक आहार इज मस्ट फॉर योग साधक, त्याच्या विरुद्धात मी आज बोलत आहे. मुनेंद्र जींनी जे सांगितलं त्याच्यात जास्त मिताहार इंटरमिटेंट फास्टिंग हेच होतं. सात्विक आहार था नाही. सर्वप्रथम मी सांगू इच्छिते, हट प्रतिपिकेच्या अनुसार कोण कोण योग साधना करू शकते हे आपल्याला YBN मध्ये सांगितलेलं आहे. युवा, वृद्ध, अतिवृद्ध, व्याधीग्रस्त आणि दुर्बल हे सगळे जण योग साधना करू शकतात. तर मी एक एक्झाम्पल देते. डिझीजेस, कोणालाही राज्यक्षम, ज्याला मॉडर्न सायन्स TB असं म्हणतात. राज्यक्षमामध्ये चिकित्सेत त्याला किंग ऑफ डिझीज असं म्हटलं जातं. तर त्याच्यात टिश्यू डिप्लिशन होतं. टिश्यू डिप्लिशन झालं, त्याला ट्रीटमेंट म्हणून अनिवार्य सांगितलेलं आहे मांस सेवन करणं. गोडच्या हाडाचं सूप पिणं हे अनिवार्य सांगितलंय. वरुणी नावाचं अल्कोहोलिक ड्रिंक घेणं अनिवार्य सांगितलं आहे टू करेक्ट दॅट टिश्यू डिप्लिशन. तसंच एक दुर्बल, ज्याला आपण कर्ष बोलतो आणि इन्सोमनिया, त्या स्थितीमध्ये वात दोष खूप वाढला जातो आपल्या शरीरात आणि कफ दोष कमी झालेला, त्याच्यामुळे माणसाला झोप येत नाही. ह्या डिझीजेस मध्ये तुमचा कफ दोष वाढवण्यासाठी तुम्हाला मच्छीचं सेवन करायला सांगितलं जातं. आणि हे सगळं मी स्वतःच्या मनाचं नाही सांगते, हे चरक संहितेत लिहिलेल्या गोष्टी आहेत. मी डॉक्टर आहे म्हणून सांगते. चरक संहितेत चिकित्सा स्थानात हे लिहिलेलं आहे. यू कॅन चेक इट मॅम. तर हे सगळं अशा अवस्थेत, अशा ह्याच्यात सुद्धा एक व्यक्ती त्याच्या मॉडिफिकेशनने योग साधना करू शकतो. बट जर सात्विक डाएट इज मस्ट जर त्या व्यक्तीसाठी केलं तर तो काय विचार करेल, ना मैं घर का हूँ ना घाट का, ना मैं ठीक से रोगी हूँ ना मैं योगी हूँ. उठा ले रे बाबा. त्याच्या मनात ही सुविधा होईल, दुसरं काही नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे हटप्रतिकेमध्ये आणि भगवद्गीतामध्ये जे सात्विक आहार सांगितले आहेत त्याचे फक्त गुण सांगितलेले आहेत. काय आहार असला पाहिजे हे सांगितलेलं नाहीये. गुण असे ज्युसी, अंक्चुअस, होलसम, प्लीजिंग टू द माइंड. प्लीजिंग टू द माइंड म्हटलं तर शैलेंद्र सरांना जर काकडी कच्चीच आवडत असेल तर तीच हनुमान सरांना कच्ची काकडी दही मध्ये मिर्च मसाला टाकून आवडत असेल. त्यांना जर जबरदस्ती खायला सांगितलं तर ते म्हणतील खात ती खायला, आपल्याला काही जमत नाहीये. तर त्यांना सॅटिस्फॅक्शन नसणार त्याचं, नाही ते त्यांच्या शरीराला लाभेल, जबरदस्ती घातलं जाईल, नाही योग साधने त्यांना. तर मग अशा वेळी सात्विक आहार मस्ट असावा की नसावा? बिलकुल नसावा. तर आता आपले समर कोर्स येत आहे, सर्वांना त्याची तयारी करायची. समर कोर्स मध्ये जर आपण बॅनर लावला या बोर्ड लावला, फ्लॅग लावला, आपल्या टीम मेंबर्सला विचारते की सात्विक आहार घेणाऱ्यांनाच ऍडमिशन मिळेल, तर किती लोक ऍडमिशन घेतील? जर बाहेरच बोर्ड लावला ना तर तिथे वाचून आतमध्ये इन्क्वायरीला पण कोण येणार, कळकी मारून जातील बाहेरूनच. तर असा सीन होईल की टीचर 3 होतील, एक स्टुडंट होईल. एक टीचर मला हात वरती ना, दुसरा टीचर मला बाहेर दे. तो मुलगा दुविधेत पडेल, त्याला लोकांना धर्म संकट होतं, त्याला योग संकट होऊन जाईल. आणि त्याच्यानंतर आपण आपल्या दिवसाची सुरुवात जी आहे ती करतो दुधाने, जे पॅक्ड फूड असतं. आणि जे काम करणाऱ्या स्त्रिया असतात या पुरुष असतात ते सकाळी पॅक्ड डब्बा भरून नेतात आणि मग ते खूप वेळानंतर 4-5 तासानंतर रिसेस मध्ये तो डब्बा उघडतात. तर तो काय झालं ते एक तामसिक आहार झाला. 4-5 तासानंतर सात्विक आहाराचे तामसिक मध्येच होतं. अरे आपल्याला साधं राजसिक पण प्राप्त नाही होते, डायरेक्ट आपण तामसिक घेतोय आणि सात्विक मस्ट.
सात्विक शुड बी मस्ट असं पण म्हणतोय. सो आय फील की सात्विक शुड नॉट बी अ मस्ट दॅट फॉर एव्हरीवन. थँक्यू.